Good morning, students. In the last class, we will discuss about the topic which we have taken in the next session. So, we start today next session by the derivative by chain rule. Derivative by chain rule. Second thing is what? Derivative of implicit functions. Third thing is what? Derivative of inverse trigonometric functions, derivative of exponential and logarithmic functions, logarithmic differentiation, derivative of parametric functions, and second order derivative. Second order derivative में याद रखो बेटा कि it contains two types. One is parametric and other is non-parametric. Is that clear? In this topic we will discuss about the Rolle's theorem and mean value theorem. Mean value theorem is also known as LMBT. What is the full form of LMBT? Lagrange's mean value theorem. So the topic is clear. We will discuss about how many points? 9 points in this class. First, derivative by chain rule. Second, derivative of implicit functions. Third, derivative of inverse trigonometric functions. Derivative of exponential and logarithmic functions. Logarithmic differentiation. Derivative of parametric function. Second order derivative. Rolle's theorem and LMBT. Clear? Is that clear? Next thing is what? Next thing we will discuss. First of all, what is the meaning of differentiation or differentiability? सबसे पहला वर्ड आपके सामने यही आएगा कि what is the meaning of differentiation or differentiability. Suppose f of x is a function. f of x क्या बेटा? एक फंक्शन है. And C is a point in its domain. f of x क्या है? फंक्शन है and C is a point in its domain. याद रखो बेटा, डोमेन के अंदर का पॉइंट क्या होना चाहिए? C होना चाहिए. C is a point in its domain. The derivative of f at C is defined by limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h. Is that clear? Be careful about that formula. This is known as first principle method. Limit by first principle method, and it is denoted by f dash c or d by dx of f of c at the point c. At the point c. Clear? अगर यही चीज़ मैं c के बजाय फंक्शन को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा तो f डैश सी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. दोनों फार्मूले में सिमिलरिटी है. देखो यहाँ पे c प्लस h क्या था? c प्लस h और f ऑफ c डिवाइड बाई h. यहाँ पे x प्लस h f ऑफ x डिवाइड बाई h. फार्मूले की सिमिलरिटी समझ में आई बेटा आपको? इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क. Clear? Next point is what beta? Every differentiable function is continuous. याद रखो, every differentiable function is continuous, but converse is not true. मतलब ये हुआ बेटा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, बट जो कन्वर्स है वो नॉट ट्रू. मतलब ये हुआ कंटिन्यूस फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोले ये गारंटी नहीं है, बट डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा इसकी गारंटी होती है. क्लियर? सबसे पहले क्या किया उन्होंने? देखो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x. कौन सा फंक्शन लिया? f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. क्लियर? कंसिडर कर लिया
कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया है, जब कंटिन्यूटी आपको मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे आपको पढ़ाया था कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब इसका लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of 0 plus h minus f of 0 minus h upon s। आंसर इज व्हाट? -1। आंसर कितना आया? -1। अब इसके बाद इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कौन सा लिमिट निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of 0 plus h minus f of 0 डिवाइड बाई h। रिजल्ट क्या है? h upon s, दैट इज व्हाट? 1। आंसर इज 1। इसका आंसर -1 और इसका आंसर 1, दोनों में डिफरेंस देख लो बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? इसका रिजल्ट क्या है? -1 और इसका रिजल्ट क्या है? +1। और दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आया। सिंस द अबव लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट and function is not differentiable at 0. Thus the function is not differentiable function. Is that clear? Any doubt? Done? Next चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखो, see, if a function is differentiable at point C, then it is also continuous at that point। मतलब अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस भी होगा। क्लियर? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट, देन इट इज़ आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, देन इट इज़ आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। उसके लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग? देखो, सबसे पहले सिंस एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया हमने और उसको कंसिडर क्या कर लिया कि इट इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो उसकी लिमिट निकाल लिया एफ डैश सी, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी दोनों को डिवाइड माइनस किया, तो रिजल्ट क्या है? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अगर आप सिंपली वर्ड में बोलूँ तो ये क्या किया है बेटा कि जो ये क्वेश्चन था, देख रहे हो फर्स्ट लाइन, सी द फर्स्ट लाइन, इस लाइन में ना इंटू एक्स माइनस सी किया है, मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट किया। जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी करोगे तो ये रिजल्ट आपका आएगा। फिर उसके बाद दोनों फंक्शंस पे क्या लगा दिया? लिमिट लगा दिया। क्या फाइंड किया? लिमिट लगाया, लिमिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड लिमिट ऑन राइट हैंड साइड। तो दोनों पर लिमिट लगा दिया, तो लेफ्ट हैंड का लिमिट स्प्लिट किया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी। तो रिजल्ट क्या बना बेटा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, देखो दिस अपॉन दिस इंटू लिमिट एक्स माइनस सी। आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट बाई अलजेब्रा ऑफ लिमिट, क्लियर? बाई अलजेब्रा ऑफ लिमिट से इसको हमने क्लियर किया। अब लिमिट पहले वाले पार्ट पे भी लग गया और लिमिट दूसरे वाले पार्ट पे भी लग गया। डन? अब इसका रिजल्ट हो गया बेटा तुम्हारा एफ डैश सी, जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका रिजल्ट एक्स के प्लेस पे सी पुट करोगे तो सी माइनस सी, दैट इज व्हाट? 0। तो एफ डैश सी इंटू 0, रिजल्ट फाइनली रिजल्ट क्या आया अपना? फाइनल रिजल्ट आया 0। क्लियर? अब उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी एज द फंक्शन इज कंटिन्यूस, एज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट सी। फंक्शन को क्या दिखा दिया बेटा? इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट सी। क्लियर? we are discussing about the formula नंबर 1। एक्स रेज टू 5 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4। क्लियर? अगर इसी फार्मूले पे क्वेश्चन को मैं लिख दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 5, तो अब ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बेटा? हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ये वाला दूसरा फार्मूला। अब वो कैसे अप्लाई होगा? बाई व्हाट? चेन रूल।
जब भी एग्जैक्ट फार्मूला, याद रखना, जब भी एग्जैक्ट फार्मूला आपको नहीं मैच करेगा तो उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही काम है कि आपको क्या अप्लाई करना है, वहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपसे चेन रूल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेन रूल।